Hello, dear aspirants. Welcome to Platitude Law Academy. Myself, Mahesh Singh. Today, we are here to discuss one of the very important topic, but unfortunate topic, of course. This is Sikkim flash flood. We'll try to understand what is flash flood, why this happened in Sikkim, what is the topography of Sikkim. By these things, you will understand the entire event. We will first understand everything via this type of diagram because geography must always be learned through a diagram. This helps you to grasp the knowledge about that particular subject matter. And once we are done with this particular thing, then we'll switch to the statements what are mentioned in the different newspaper by which we can actually pick up the important points. Okay? So let us start with the discussion of the Sikkim flash flood. Now, you might have seen this particular type of news articles almost in every newspaper. Okay? It is one of such article, the cutting of one of such article. It mentions that Sikkim flash flood live update, 14 killed, 104 missing, rescue operation underway. Now, though it mentions 104 missing, but later it has been seen that more than 150 people had gone missing, right? And many people were killed. Now, this actually shows the intensity of this particular event, and by this intensity, we can actually get to know that how important is this particular topic from our exam point of view. Hence, it is important for us to know about this and learn about this entire event for our exam. Now, this is the topography of Sikkim. Imagine this particular as a topography of Sikkim. This is Sikkim, right? And this one is the northern part of Sikkim as well as this is southern part of Sikkim, right? This is Sikkim, northern part, southern part. Now, when you look at the northern part of Sikkim, you will see there are many mountains. बहुत सारे mountains है सिक्किम के northern part पे. And then as you switch to the southern part, mountains come होगा and there are valley area. Now, what is valley? Valley is the area between the two mountain ranges. Mountain ऐसा है, right? उसके बीच का जो इलाका है वो valley है. तो सिक्किम का जो southern part है, that is valley area. This one, this type of valley area. ठीक है? दो mountain ranges के बीच का इलाका है. ठीक है? Now, सिक्किम का अगर आप माउंटेन्स देखेंगे उनकी हाइट है एंड मेजॉरिटी ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, राइट? वहां पर ग्लेशियर्स है, आइस से कवर्ड है. तो ऑल दिस आर कवर्ड विद आइस, दीज आर कवर्ड विद द ग्लेशियर्स. ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर्स है, राइट? अब ये जो ग्लेशियर्स है, दिस ग्लेशियर्स दे मेल्ट डाउन, और ये जब मेल्ट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ से एक पानी की धारा बनती है और ये आगे आगे जाती है. इन दीज वाटर यू विल फाइंड देर आर सेडिमेंट्स. इसमें सेडिमेंट्स बहुत होते हैं. सेडिमेंट्स मतलब उसमें कंकड़ जैसा है ना, बालू, क्ले एंड ऑल दिस थिंग. दिस सेडिमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर वाटर. नाउ हुआ क्या है, एक लंबे टाइम स्पेन पर ये सेडिमेंट्स कहीं एक जगह जाकर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, राइट? यहाँ पर आकर उसका डिपॉजिट हो रहा है एक जगह, कहीं पर डिपॉजिट होते 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 इसने इस वाटर बॉडी में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया. और ये ब्लॉकेज क्रिएट करने की वजह से यहाँ क्या होगा, यू विल सी कि यहाँ पर एक वाटर बॉडी क्रिएट हो गया है. वाटर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर वाटर कलेक्ट होते होते वाटर बॉडी क्रिएट हो गया. दिस टाइप ऑफ वाटर बॉडी, सच टाइप ऑफ वाटर बॉडी जो यहाँ फॉर्म होता है, दिस इज नथिंग बट अ लेक, राइट? और ये जिस लेक की हम बात कर रहे हैं, दिस इज साउथ लोनार्क लेक, राइट? सिमिलर टाइप के और भी बहुत सारे लेक है. मोर देन 100 सच लेक्स आर देयर इन सिक्किम, जिसमें से 14 को तो डेंजरस लेक में डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें आगे फ्यूचर में कभी भी डिवास्टेशन हो सकता है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेक विच इज साउथ लोनार्क लेक. तो यहाँ पर लेक फॉर्म हो गया, दिस इज साउथ लोनार्क लेक. अब ये लेक में से भी पानी का एक ओपन होगा और वहां से पानी का डिस्चार्ज होता है. ठीक है, और ये जो लेक में से, साउथ लोनार्क लेक में से वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज लोनार्क रिवर. इट फॉर्म्स द रिवर एंड दैट इज लोनार्क रिवर. ठीक है, अब लोनार्क रिवर आगे जा रहा है. अब आगे चलकर यहां से एक और रिवर आती है. समझो यहां से एक और रिवर आई, दिस इज द लाचेन रिवर. Now, both of these river, that is Lonak River, Lachin River, both of these river, they merge or they enter into another river, that is Tista River. There is one river coming from other side called Tista River. We'll talk about Tista River in detail in the later part of this session. Okay? So they enter into a Tista River like a tributary of Tista. Now Tista अब इसके आगे बहती जाती है. कहाँ पे बह रही है? वैली एरिया में. देखिए, दिस इज द वैली रीजन. यहाँ पर ये पहाड़ आपको दिख रहा है, दिस इज द पहाड़. यहाँ पर भी माउंटेन है और दो माउंटेन रेंजेस के बीच का जो जगह है, दैट इज कॉल्ड वैली. नाउ तीस्ता फ्लोज थ्रू अ वैली एरिया, राइट? यहाँ वैली वाले एरिया से जा रही है. इसी तीस्ता के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनाया है. यहाँ पर एक डैम है.
दिस डैम इज कॉल्ड चुंगतांग डैम, ठीक है, ये डैम है कॉल्ड चुंगतांग डैम। अब ये चुंगतांग डैम के ऊपर देयर इज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉल्ड तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1200 megawatt of electricity, and this is the biggest hydropower project in Sikkim, ठीक है। अब यहाँ पर एक डैम हुआ, ये वाला डैम वाला कहानी खत्म। डैम से वाटर क्या होगा, ये डैम स्टोरेज डैम नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। दिस इज टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा और उसके बाद वाटर को आगे डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जब वाटर आगे बढ़ेगा जाता है तो इसी पर यहाँ पर आपको जो रेड सर्कल में दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर्मी पोस्ट, दिस वन इज आर्मी पोस्ट, ठीक है। अब आर्मी का कौन सा पोस्ट है, इट इज अ फॉरवर्ड पोस्ट। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड पोस्ट, देखिए क्या होता है, यहाँ पर आर्मी स्टेशन होती है और यहीं से वो फॉरवर्ड मूविंग करती है इंडिया के कुछ बॉर्डर के तरफ। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेशन होती है लेकिन यहीं से वो निकल जाती है आगे, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, तिब्बत वाला एरिया, इंडिया चाइना बॉर्डर के वहां जाएगी। या फिर यहीं से आपको बगल में ही दिखेगा, देयर इज अ चिकन स्नेक कॉल्ड शिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो शिलीगुड़ी कॉरिडोर के तरफ भी यहाँ से मूवमेंट उन लोग का होता है, यहाँ से इंडिया भूटान बॉर्डर के उधर भी मूवमेंट होता है। तो दिस इज द मूवमेंट, वो यहाँ से मूवमेंट होता है, दिस इज द स्टेशन पॉइंट एंड दिस इज अ फॉरवर्ड पोस्ट। मतलब यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा वैली एरिया है, तो यहाँ पर सिविलियंस लोग, पीपल दे स्टे। नाउ कैन यू सी दिस टोपोग्राफी, नॉर्थ से साउथ के तरफ माउंटेन से अब वैली की तरफ आ रहे हैं, माउंटेन ग्लेशियर्स है, वहां से पानी पिघलता है और ऐसे बहुत सारे हाई रेंज पर, बहुत हाइट पर, जैसे ये साउथ लोनाक लेक जो है ये 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, 17,000 फीट की ऊंचाई पे दिस लेक इज क्रिएटेड और ये बहुत लंबे समय से बना है, ठीक है। यहाँ पर एक लेक है, लेक क्यों फॉर्म हो गया है, बिकॉज सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स लोग ने ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया इतने लंबे सालों से, हजारों हजार साल से, और ये टोपोग्राफी एक क्रिएट कर दिया है जहां पर लेक का फॉर्मेशन हुआ है। बट यहाँ पर से भी तो पानी डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो एक रिवर के फॉर्म में, दैट इज लोनाक रिवर। लोनाक रिवर आगे बढ़ रही है एंड देन यू हैव आल्सो लाचेन रिवर। Lachen River and Lonak River, they merge in Tista River and they flow through this valley. This valley is called Lachen Valley, right? Lachen Valley से आगे बढ़ा तो there is a dam called Chungtang Dam. Chungtang Dam के ऊपर ही है तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जब यहाँ से आगे जब तीस्ता रिवर बहती है तो इधर ही वी हैव द आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट। फॉरवर्ड पोस्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया, एंड देन उसके बाद में सिविलियंस लोग रहते हैं। दिस इज द नॉर्मल टोपोग्राफी। अब हुआ क्या देखिए, अच्छा, दिस लेक, बिकॉज दिस लेक इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, ये लेक है तो लिख दो, बिकॉज दिस लेक इज फॉर्म्ड बाय द वाटर कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स, राइट, तो इसको जी लिख देते हैं, GL। और जब ये लेक टूटता है, समझो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस कॉज हुआ और ये टूटा और जिससे पानी डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको आउटबर्स्ट बोलते हैं, राइट, और इससे फ्लड कॉज हो जाएगा तो वो F होगा। तो whenever the flood is caused by the outburst of such type of lake, that flood is called GLOF, ठीक है, GLOF। ग्लेशियर्स लेक से जब पानी डिस्चार्ज होकर फ्लड कॉज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड GLOF, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है, दीज आर द सेडिमेंट्स व्हिच हैज क्रिएटेड दिस टोपोग्राफी, व्हिच हैज क्रिएटेड दिस ब्लॉकेड, और यहाँ पर लेक का फॉर्मेशन हुआ था, ये अचानक से टूट गया। अब ये क्यों टूटा वो हम देखते हैं, उसका रीजन देखेंगे। ये टूटा और यहाँ पर पानी का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हुआ लोनाक रिवर से, देन दैट रिवर एंटर्ड इनटू अ, दैट वाटर एंटर्ड इनटू अ तीस्ता रिवर, और तीस्ता रिवर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। अब बढ़ा तो ये पानी बहुत ज्यादा स्पीड से गया, स्पीड से जाकर इतना ज्यादा पानी का वॉल्यूम था, और ये सिर्फ पानी नहीं है, इसके अंदर सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, मलबा भी बहुत ज्यादा है, वो एकदम फोर्स के साथ 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है डाउनस्ट्रीम का, इतने ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आया कि इसने चुंगतांग डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके ऊपर जो तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इवन उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पानी जब इससे आगे बढ़ा तो इसने आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सब चीज इतना फास्ट हुआ, इतनी कम टाइम के अंदर हो गया कि नो वन गॉट द टाइम टू रिएक्ट, राइट, और ये सब चीज रात को हुआ। नाउ फॉरवर्ड पोस्ट को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। 23 आर्मी पर्सनल्स तो उस समय मिसिंग भी जा रहे थे, और इसके आगे जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया वो तो आप सभी को पता ही है, बहुत हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन टू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, सब चीज को लॉस काफी कॉज कर दिया। नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स,
कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस आउटबर्स्ट, ये आउटबर्स्ट हुआ क्यों, ये यहाँ पर टूट कर निकला क्यों, ऐसा क्यों निकला। तो इसके दो रीजन कहा जा रहा है, एक है क्लाउड ब्रस्ट और दूसरा है नेपाल अर्थक्वेक। अब पहले देखते हैं क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट को समझने से पहले ये समझिए कि यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा वाटर का वॉल्यूम हो गया, और वाटर का वॉल्यूम होने की वजह से देयर वाज अ कंटिन्यूअस प्रेशर बाय दिस वाटर ऑन दी बॉर्डर ऑन दिस पर्टिकुलर जो फेंसिंग है या फिर ये जो इसका लेक का बॉर्डर है, इसके ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था और वो प्रेशर से ये टूट गया और यहाँ पर पानी निकल गया। अब सवाल आता है कि लेक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पानी का, ये हमें कैसे पता। तो ये हमें पता चला दो images से। देखिए, there is a image, let me explain you about this image and then we'll again get back to that particular diagram, you will understand everything. This image is taken by a satellite, hence it is a satellite image, right? Now ये इमेज किसने लिया है, कौन से सैटेलाइट ने लिया है, तो देयर इज अ सैटेलाइट कॉल्ड रीसेट, ये इसरो का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, एंड देन अदर सैटेलाइट इज कॉल्ड सेनिटल 1A सैटेलाइट, एंड दिस इज यूरोपियन रडार इमेजिंग सैटेलाइट। बाय दीज टू सैटेलाइट दिस पर्टिकुलर इमेज हैज बीन टेकन। ये इमेज तीन अलग डेट का है, दिस इज ऑफ 17th ऑफ सितंबर, ये 17 सितंबर का इमेज है, दिस वन इज ऑफ 28th ऑफ सितंबर एंड दिस वन इज ऑफ 4th ऑफ अक्टूबर। 4th अक्टूबर को ही वो डिवास्टेशन कॉज हुआ था, वो इवेंट हो गया था, और ये आफ्टर दैट इवेंट है, यानी आफ्टर वो जो डिस्ट्रक्शन डिजास्टर कॉज हुआ, आफ्टर दैट इवेंट व्हाट इज द इमेज ऑफ साउथ लोनाक लेक, लोनाक लेक, ठीक है, ये साउथ लोनाक लेक के हम इमेज के बारे में देख रहे हैं। तो एंड दिस आर ऑब्वियसली बिफोर, ये पहले डिस्ट्रक्शन से पहले का क्या हाल है और डिस्ट्रक्शन से बाद का क्या हाल है। तो डिस्ट्रक्शन से पहले 17th ऑफ सितंबर का जो इमेज है ये शो कर रहा है कि साउथ लोनाक लेक का एरिया कितना है, इसका एक्सपांशन कितना है, तो 162.7 हेक्टर, इतने दूर तक का ये एक्सपांशन है। सी, इसका डेप्थ किसी को पता नहीं था, तो वॉल्यूम हमें नहीं पता कि वाटर कितना होगा, बट जब आप पानी ज्यादा होगा तभी तो एरिया ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो इसका 17th ऑफ सितंबर को एरिया कितना था, 162.7 हेक्टर। बाय 28th ऑफ सितंबर एरिया कितना हो गया, 167.4 हेक्टर। देखो, एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ने का मतलब है कि पानी इसमें बढ़ चुका है, ठीक है। एंड देन आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो इमेज है दिस शोज कि इसका एरिया कितना है, 60.3 हेक्टर। अब 60.3 मतलब 100 हेक्टर के जितना जो वाटर था, अब वॉल्यूम हमें नहीं पता बट यू कैन इमेजिन 167 हेक्टर तक है इसका एरिया, और आफ्टर डिस्ट्रक्शन इसका एरिया बस बच गया है 60 हेक्टर, मतलब नियर अबाउट 100 या मोर देन 100 हेक्टर में जितना पानी था वो पूरा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, उतना पानी डिस्चार्ज हुआ है, मोर देन 100 हेक्टर के उतना का पानी डिस्चार्ज हुआ है। तो बाय दिस यू कैन इमेजिन कि उसमें डिस्ट्रक्शन कॉज होने से पहले, ये डिजास्टर होने से पहले पानी कितना ज्यादा था, राइट, और पानी निकलने के बाद, डिजास्टर होने के बाद पानी कितना कम बचा। इससे दो चीज, तो पहली बात पानी ज्यादा था तो इसका मतलब प्रेशर काफी क्रिएट हो रहा होगा उसके, और सेकेंड चीज 100 हेक्टर के एरिया के उतना का पानी अगर डिस्चार्ज हो गया तो यू कैन इमेजिन द डिजास्टर, किस हाई लेवल का डिजास्टर कॉज हुआ है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस इमेज, दैट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसके बॉर्डर के ऊपर काफी प्रेशर कॉज हो रहा है, प्रेशर की वजह से ये टूटा और टूटकर फिर पानी निकल। अब इसमें दो क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन कि ये वॉल्यूम बढ़ा कैसे, तो सम पीपल आर गिविंग रीजन दैट क्लाउड बर्स्ट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट। और दूसरा एक और रीजन है कि भाई यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो आइस पिघलते जा रहे हैं उसका रेट काफी ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ दिस जो वाटर का वॉल्यूम बढ़ा है। दिस आर टू रीजन कि वाटर का वॉल्यूम क्यों बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द रीजन, एंड सेकंड इज द क्लाउड बर्स्ट। नाउ व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब किसी एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया के ऊपर मोर देन 100 mm का इन एन आवर बारिश जब होगा, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। मोर देन 100 या मोर देन 100 mm का रेनफॉल इन एन आवर जब एक छोटे से एरिया के ऊपर होगा, बहुत ज्यादा बारिश होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। And because of this cloud burst and because of global warming, the volume of this lake has increased. And similarly, 13 और ऐसे lakes है, including this 14 ऐसे lake है सिक्किम में जिसे dangerous
माना जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम का प्रेशर आया। बट नाउ सम पीपल आर सेइंग कि वाटर का भले वॉल्यूम बढ़ गया, बट अगेन इट डू नॉट हैज सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि वो इस बॉर्डर को इतना तोड़ देता, राइट। सिर्फ वाटर के वॉल्यूम के वजह से ये टूटेगा, दिस इज नॉट सो इजीली एक्सेप्टेबल। सो देयर कैन बी सम अदर रीजन एज वेल। तो सेंटर वाटर कमीशन ने कहा है कि द अदर रीजन कुड बी नेपाल अर्थक्वेक। दिस एंटायर इवेंट हैपेंड इन द मिडनाइट ऑफ 4th ऑफ अक्टूबर, राइट। और एक दिन पहले 3rd अक्टूबर को नेपाल में 3 जॉल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक आया, 3 झटका लगा। एंड दीज झटका, ये जो अर्थक्वेक का जो जॉल्ट था वाज एक्सपीरियंस्ड इवन इन इंडिया। एंड यू नो सिक्किम फॉल्स इन 4th कैटेगरी का, जो 4th लेवल का इंडिया में जो अर्थक्वेक जोन है उसमें ये फॉल करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस 3rd of October जो नेपाल में अर्थक्वेक आया, इसका इफेक्ट इंडिया में भी फील किया, एंड दिस कुड बी अ रीजन फॉर वीकनिंग दिस बॉर्डर एरिया। और बिकॉज ऑफ दिस वो वीक हो गया, और बाद में वॉल्यूम तो था ही, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पूरा टूटा, पानी नीचे आया और सारा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी, राइट। दिस इज द स्टोरी दैट इज बिहाइंड दिस इंटायर इवेंट। ये पूरी कहानी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। नाउ let us switch to the statements what are mentioned in different news articles। ये वहीं से लिया गया लाइन है, उसी को simplified तरीके से यहाँ पर mention करके लिखा गया है, so that you must know what is mentioned in the newspaper, so that everything become easy for us to understand and do a study for exam। First of all, what is GLOF? Now, as I mentioned, GLOF क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब ग्लेशियर से जो लेक फॉर्म हुआ, वो जब आउटबर्स्ट होता है और फ्लड कॉज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सी, GLOF occurs when lakes formed by melting glaciers suddenly burst open। सडनली ब्रस्ट हुआ, ओपन हो गया और पानी नीचे गया। दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन, बहुत वाटर एक्यूमुलेट हुआ है, दिस कुड बी वन रीजन, राइट, इन द लेक। और triggers like earthquake, this can also be a reason for the outburst। when the lake burst, it released the enormous volume of water all at once, एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी को डिस्चार्ज कर देता है, causing flash flood। we will understand what is flash flood later in this session, ठीक है। flash flood downstream। now this flood can be extremely destructive and perilous for both people and environment in the affected area। ठीक है। सो व्हाट इज GLOF, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, बिकॉज आजकल के टाइम पर व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग, GLOF एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनते जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी मस्ट नो। सेकेंड, GLOF occurred in the part of Lonak Lake, leading to the rapid rise in the water volume, ठीक है, with very high velocities downstream along the Tista River Basin in the early hours of 4th of October। This happened in 4th of October। GLOF की वजह से वाटर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, लेवल बहुत बढ़ गया तीस्ता में, ठीक है। Now then this resulted in the severe damage in some of the district like Mangang district, Gangtok district, Pakyong district and Namchi district। These are the district जिसमें बहुत destruction cause हुआ। According to the Sikkim State Disaster Management Authority, 14 people have lost their lives and 102 others, including 22 army personnel, are missing after the GLOF। वैसे 23 था, लेकिन 1 का रेस्क्यू हो गया, तो इसके लिए 22 यहाँ पर मेंशन है, but it is 23 people who went, army personnel who went missing, and more than 150 people, including army personnel, went missing। The incident also resulted in the breach of the Chungtang Dam। Chungtang Dam destruction हो गया। The crucial component of the 1,200 megawatt Teesta Stage 3 hydroelectric project, the largest hydro project in the state, even this got damaged, right? ये भी destroy हो गया। South Lonak Lake is situated at the height of 17,000 feet। Now, as per the Central Water Commission, in the post जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, suggested that the lake burst could have been caused by the earthquake in Nepal। नेपाल में earthquake जो एक दिन पहले आया, that could be a reason for this particular outburst, ठीक है। Now,
कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में बहुत हैवी रेन हुआ था, आई होप यू पीपल नो दैट रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बारिश हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल वहां पर मोर देन 10,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। मोर देन 500 पीपल लोग है ना जो सफर हुए हैं, एंड मोर देन 60-70 पीपल्स लोगों का डेथ भी हो गया था। तो बिकॉज ऑफ दिस जो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल हुआ रिसेंटली, और ये जो सिक्किम का फ्लैश फ्लड है, ये दोनों को ही नेशनल डिजास्टर, टू डिक्लेयर दिस एज अ नेशनल डिजास्टर, दिस इज द डिमांड ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज दिस नेशनल डिजास्टर? ये नेशनल डिजास्टर होता क्या है, और क्यों इसकी मांग की जा रही है कि सिक्किम फ्लैश फ्लड को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए? देखिए, पहली बात, इसका कोई ऑफिशियल या फिर एक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ दिस थिंग, बट 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि कोई भी डिजास्टर, एनी डिजास्टर, जो बहुत या मतलब कोई भी कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलेमिटी, कोई भी ऐसा डिजास्टर, वेदर वो मैनमेड हो या फिर नेचुरल हो, राइट, अगर उसने बहुत हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया है इकोनॉमी को या फिर ह्यूमन लाइफ को, देन सच टाइप ऑफ डिजास्टर कैन बी टर्म्ड एज अ नेशनल डिजास्टर। ये नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने की अथॉरिटी लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट डिक्लेयर्स एनी डिजास्टर एज अ नेशनल डिजास्टर। और एक बार नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया तो क्या होता है कि जो उसमें रिलीफ एक्सपेंडिचर है वो पूरा सेंटर बेयर करती है। बेसिकली 90%, हिली एरिया वाला अगर स्टेट है तो 90% ऑफ द जो एक्सपेंडिचर है इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एटलीस्ट स्टेट गेट्स द इकोनॉमिक रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ तो उन लोगों को थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट दैट दे एंजॉय वंस द थिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल डिजास्टर। ये स्लाइड ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि दो सैटेलाइट, दैट इज रिसेट 1 which is ISRO's radar imaging satellite, and then the Sentinel 1A which is European image radar imaging satellite. By these two satellites this image have been taken। कंपेयर है तीन पार्ट्स में, लाइक 17 सितंबर, 28 सितंबर एंड 4 अक्टूबर का। 162 हेक्टर तक एरिया एक्सपांशन था। देन उसके बाद में बिकॉज वाटर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से आपका आइस मेल्ट हो रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज द क्लाउड बर्स्ट। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया बढ़ेगा। तो 167.4 हेक्टर तक इसका एरिया एक्सपांड हो गया था। ठीक है, नाउ आफ्टर द डिजास्टर इसका एरिया कितना रह गया है, तो वंस जस्ट 60 हेक्टर, 60.3 हेक्टर तक। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर देन 100 हेक्टर का एरिया में जितना पानी था वो पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्ट्रक्शन कितना होगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लैश फ्लड। व्हाट इज फ्लैश फ्लड? वेरी सिंपल, जब कहीं पर भी फ्लड होगा और बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेसिव, देखो जनरली फ्लड में क्या होता है, वाटर कम्स बट ग्रेजुअली, धीरे 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 वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन जब बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है सडनली विद इन लेस देन 6 आवर्स, है ना, लेस देन 6 आवर्स में बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेन होता है caused by rainfall, heavy और excessive rainfall की वजह से within a less than 6 hours जब flood cause हो जाता है, that is called flash flood। ठीक है, what is cloud burst? जब कभी भी 100 mm in an hour, more than 100 या फिर more than 100 mm का rainfall होगा in an hour, then such type of rainfall is called cloud burst, it is called cloud burst। ठीक है, now, because this news is related to Tista, water came in the Tista, and because of that, all this destruction happened. We must know about the Tista as well. Now, Tista river originate कहाँ से होती है? तो तीस्ता आंग से, ग्लेशियर से। तीस्ता कौन से स्टेट से होकर बहती है? तो सिक्किम से, देन वेस्ट बंगाल, देन फाइनली इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश में जाकर वो मर्ज हो जाती है, वो फॉल होती है इन ब्रह्मपुत्र रिवर। अर्लियर तीस्ता यूज्ड टू एंटर द गंगा रिवर, वो पहले गंगा में जाके मर्ज हो जाती थी, बट इन द स्पैन ऑफ टाइम ब्रह्मपुत्र ने तीस्ता को हाईजैक कर लिया, एंड नाउ तीस्ता एंटर्स इन ब्रह्मपुत्र एंड नॉट द गंगा रिवर। तीस्ता इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम। नाउ तीस्ता को लेकर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। किस चीज के लिए? वाटर शेयरिंग के लिए। वाटर शेयरिंग कि हमको कितना पानी मिलना चाहिए, हमको कितना पानी मिलना चाहिए। तो वाटर शेयरिंग को लेकर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 1983 में एक बेसिक, एक टेम्पररी सेटलमेंट हुआ था कि बांग्लादेश विल यूज 36% ऑफ द वाटर फ्रॉम तीस्ता एंड इंडिया विल गेट 39% ऑफ वाटर फ्रॉम तीस्ता। दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन, एक परमानेंट सेटलमेंट इसमें हुआ नहीं है। स्टिल द चैलेंज इज कंटिन्यूड, स्टिल द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, एंड बोथ द कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग टू कम अप विद द पॉसिबल सॉल्यूशन।
एंड लेट अस सी कि फ्यूचर में कभी इसका सॉल्यूशन निकल के आता है. Because this news is related to Sikkim, you must know some basic information related to Sikkim as well. सिक्किम का नाम है द वैली ऑफ राइस. इसी को आप निक नेम है द वैली ऑफ राइस. लाइक फॉर हमने लास्ट एक सेशन में पढ़ा था कि बिहार का नाम क्या है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का निक नेम क्या है. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक and more than 35% of the area of Sikkim is covered by Kanchenjunga National Park, which is UNESCO World Heritage Site. Sikkim was earlier not the part of India, right? Before actually it got incorporated in India on 16th of May 1975. This is the date on which it got incorporated in India. But before incorporation, it was ruled by a kingdom. Which kingdom or which dynasty? It is Namgyal dynasty. Namgyal dynasty is the dynasty which used to rule Sikkim. और नामग्याल डायनेस्टी में जो रूलर होता था, रूलर वॉज ऑल्सो अ प्रीस्ट, मतलब प्रिस्टली रूलिंग क्लास यहाँ पे हुआ करता था. ठीक है. और इन लोगों को चोग्याल कहा जाता था. तो आप चोग्याल डायनेस्टी भी बोल सकते हैं और यू कैन कॉल देम एज अ नामग्याल डायनेस्टी. दिस इज द डायनेस्टी दैट यूज्ड टू रूल द किंगडम ऑफ सिक्किम, which used to rule the Sikkim, right? Now, Sikkim was incorporated in India on 16th of May 1975, and by the incorporation, it became 22nd state of India. It was incorporated in India by 36th Constitution Amendment Act. Current governor is Lakshman Acharya. The chief minister is Prem Singh Tamang. And Sikkim has the 1 seats of Lok Sabha and Rajya Sabha. लोक सभा का भी एक सीट है सिक्किम में, राज्यसभा का भी एक ही सीट है. और सिक्किम अभी फिलहाल इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया. अभी बहुत सारे स्टेट हो गए ऑर्गेनिक स्टेट, बट सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया. So with this much of information, we have done everything related to this particular news. Whatever the information you have seen in the discussion, those are important from your CLAT point of view. Okay, so that much, this much for the day. Let us sign up for the day and meet in the next session. Till then, goodbye. Take care.